आप उठा के सीधे सीधे इसको उठा के सीधे सीधे यहाँ रख देंगे, दैट विल बी देयर। क्या टास्क फिनिश हो गया? For the time being this task is finished, but another questions are there which can be added to that. जैसे होता है ना, हम लोग आजकल एग्जाम में कह रहे हैं कि रोज मेरी ही इन्विजिलेटर की ड्यूटी लगती है। Yes, but there is no relax for us. नहीं है रिलैक्स हमारे लिए। We have to move on next task. Every day there is a new task. और देख लीजिए, you have to go through your schedule. How much tasks are there? But at random some tasks are coming. Then that she will think, अरे कैसे होगा? But when you make up your mind, you will able to complete that task. And everybody is completing that one, right? And that difficulties are nowhere considered. एक प्लेयर सेंचुरी बनाता है, कितने कैच छूटे हैं, कितनी बॉल पे उसको चोट लगी है, that is not important. Only 100 run is important. और एक दिन 100 बनाया लोग खुश हैं, दूसरे दिन 0 बनाया तो वो भी सुनना पड़ेगा ना, क्योंकि जब आप अप्रिसिएशन लेते हैं तो you have to be in a position to take the criticism also. That's clear? तो इस वजह से एक चीज I want to show that one कि ये काम कभी खत्म नहीं होगा, वो सिर्फ एक डे होगा, that one is the end. फिर वो अगली एक आपने कंप्लीट किया, इसको भरा आपने 1 2 3 4 5 न्यू टास्क विल बी देयर। होता है ना, तो कुछ लोग ये बना लेते हैं कि चलो काम लेट करेंगे, पहले करेंगे तो और एक काम दे देंगे सर। होता है ना, तो लोग धीरे करके आते हैं कि नहीं आएगा, लेकिन काम तो कम नहीं होगा क्योंकि सामने वाला आपसे ज्यादा चालाक है। क्या किस वजह से चालाक है? डिग्री में नहीं, नॉलेज में नहीं, पैसा में नहीं, एक्सपीरियंस। कि जो आज आप करना चाह रहे हैं, that I have already done that. तो इसीलिए चांसेस बहुत कम है। हाँ, कभी कभी बहुत सारी चीजें अवॉइड की जाती है ना, हम लोग अपने बच्चे की करते हैं, हम लोग आपकी करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पकड़ा भी जाते हैं। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ ए any type of work, either it's life, home or school or whatever we have. Next one. Yes, again in every workshop I have this one. What is it? Everybody is aware about that. What is Group study. Huh? Group study. Competency is group study. How? Okay, you can say it. Teaching learning process. बहुत आसान सा ले लिया ऐसा नाम इसने, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज कॉम्पिटेंसी। दैट्स गुड। Skill based learning. Yeah, and now she is the Hannah Mrs. coming to that one is a skilled based learning. What is skill? सब लोग स्किल्ड है ना पढ़ाने के लिए? क्या सबका परफॉर्मेंस उसी इंस्टीट्यूशन से बीएड करने के बाद सेम होता है? हम किसी बच्चे को क्लास में पढ़ाते हैं 10-20 स्टूडेंट्स, क्या सबका परफॉर्मेंस सेम होता है? But we are giving the same thing to every student, but in return we are getting the different types of performances are there. That is called the competency of the particular individual, and that will always be everywhere. हर जगह वो रहेगी। तो यही है ना what लाइफ कहाँ से शुरू होती है? What, फिर आती है your act one. तो व्हाट इज क्लियर, इसका आंसर क्या बनेगा? अगर हम इंग्लिश वालों से पूछें कि क्या होगा फिर आंसर? It is. It is. Yes. What is this will become your it is. And then again you will differentiate that one. Now it will become he or she's performance. It is a non-living thing, but we have to convert it to the He, living she. thing, that is he or She. Yes, next one. Yes, now I am coming to the definition. What is there? The thing is competency, description of performance of a task in industry, education, profession or professional life in terms of क्या क्या terms हो सकता है? उसको hidden ही रहने दीजिए. That is there. Which are the terms? If we will take a problem, there is different aspects.
related to that one, and their way of solution will be somewhat different every moment, every point. कभी कभी आता है हमारे पास परेशानी ना, सब तो ठीक है, 29 स्टूडेंट्स तो ठीक है, ये एक से मैं नहीं संभाल पाऊंगा, यस है ना। लेकिन बहुत हद तक कुछ क्लासेस में वो खत्म हुआ कि नहीं, एक आध क्लास में अभी भी बचा हुआ है ना। फर्स्ट स्टैंडर्ड ग्रेड की बात करें तो अभी भी मेरे ख्याल से एक होगा ना, बिना मिस यू आर फेसिंग डिफिकल्टी, बट यू कैन डू इट और नॉट। हमको प्रॉब्लम नहीं, हम उसको समझ के अगर सब्जेक्ट टीचर्स जाते हैं तो वो that will be taken your off, because you are the class teacher. Ultimately, you have to be that one. Yes, because everybody is coming to you, and it's your competency that how you are dealing with the other subject teachers, relating to her or his. That is the most. That is called the competency. है ना? And I want this thing that from each and every individual, if you will have a research or have a previous knowledge, then you will able to face a problem. और जब हमने कुछ किया नहीं है कोई काम, तो हम पहले कैसे कह सकते हैं ये काम मुझसे नहीं होगा। जैसे एक रेजिस्टेंस होता है ना, उसकी वजह दो होती है कि अगर मैं एक काम करूंगा तो सर मेरे ऊपर लादते चले जाएंगे, और मेरा एक वो है कि काम उसी को दिया जाता है जिसके अंदर कॉम्पिटेंसी होगी। कॉम्पिटेंस सब लोग हैं, एवरीबॉडी इज कॉम्पिटेंसी है, लेकिन उसके अंदर कॉम्पिटेंसी होगी। किसको काम दिया जाता है? जिससे जल्दी से आ जाए ना तो देंगे। अगर कल कोई छुट्टी पे जाने वाला है तो मैं बेवकूफ हूँगा ना जो उसको काम दूंगा कि कल कंप्लीट करके दीजिए। तो आई हैव टू चेंज माय थिंकिंग एंड ऑल द आइडियाज आई हैव टू चेंज दैट वन, दैट इज कॉल्ड द कॉम्पिटेंसी। और इसको हम एक जगह बाउंड नहीं कर सकते हैं। सबसे बड़ी खास बात है कि इंसान हो चाहे कोई भी टास्क हो या इन फील्ड ऑफ द एजुकेशन, इसको हम बाउंड नहीं कर सकते। लर्निंग इज बियॉन्ड दिस क्लास। इस क्लास के बाहर एक्चुअल लर्निंग होती है। स्कूल में तो सिर्फ थ्योरी मिलती है। नेक्स्ट वन, चलिए जल्दी जल्दी करिए। That we have discussed that one. पहले प्रीवियस नॉलेज होनी चाहिए, अंडरपिनिंग नॉलेज है नॉलेज, लेकिन बार बार आपको फिगर करना पड़ता है। गाड़ी आप लोग बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, सब चीज है ना, लेकिन दबाना पड़ता है। यस और नॉट? सेल्फ को प्रेस करना होगा। अगर वहां सेल्फ से नहीं गाड़ी स्टार्ट होती तो क्या करना, छोड़ देंगे? लात मारना पड़ता है ना गाड़ी से। यस और नॉट? Yes. That is the there. क्यों वहां मैंने क्यों ये वर्ड यूज किया है? क्योंकि वहां हमें फोर्स और एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ती है। वहां पे बैटरी का काम हमारा पैर करता है, बट द सेम वर्क इज डन, बट द परफॉर्मेंस एंड द रिलेटिव टू द अदर मटेरियल्स इज लेस दैट वन। स्किल, व्हाट इज स्किल? कुछ लोग कहते हैं ना मैं तो कर सकता हूँ कर सकती हूँ लेकिन करती नहीं हूँ। वो दैट इज नॉट द चालाकी, that is not called the skill, that is the shortcomings. You are hiding that, you are not capable of doing things. अगर आता है तो हमारे तो यही लाइफ है यार, जो आता है वही तो हम देते हैं। तो how we can hide this one? Whatever the things we know that we are giving, क्या खाली हो जाता है? हम लोग तो ऐसे प्रोफेशन में जितने ही देते हैं that we have a new work things are coming to our mind. लेकिन एक चीज हमारे अंदर है ना कि पहले हम जो है कोई भी चीज आती है तो पहले हम उसको नेगेटिव देखते हैं। जैसे हम लोग के पास भी जब ये लिस्ट आई है ऊपर से, फिर लगा कि यार कैसे होगा, एग्जाम है ये वो है, लेकिन फिर जब उसको एडजस्ट करने के बाद आया तो मेरा एक वर्ड था कि अगर टीचर नहीं आएंगे मेंटली, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस वर्कशॉप एट दिस मोमेंट एट दिस टाइम, बिकॉज द एग्जामिनेशन आर गोइंग ऑन एंड द मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर बिजी इन द लेक्चर वन, but I have taken this one that this will at least improve me now. I will get something ना. Why I am just every time that I am giving the things one. बच्चों के साथ एक चीज मिलती है ना, जो भी करो भूल जाओ, है ना? देखिए होंगे दो बच्चे लड़ते हैं, बहुत बुरी तरह लड़ लेते हैं, कभी कभी चोट भी लग जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखिए फिर वो एक साथ है। क्या? Whatever the things we can learn it from our students, this thing or not. So all the things, everything is teaching and learning side by side. You can aid to this one
competency based teaching and learning is there. Attitude, that is the most important thing to complete a work on. Attitude, जब आप मुंह गिरा के काम करते हैं ना, फिर उतनी इसकी इम्पोर्टेंस नहीं होती है. That you have to take the things gracefully. क्योंकि आपको तो ये मालूम है कि काम तो भैया करना ही करना है, तो फिर खुशी होके करिए ना, क्योंकि तब गलती कुछ होगी ना तो वो एक्सक्यूज की जाएगी. जब आप मुंह गिरा के लेते हैं ना, तब तो हम लोग जैसे हैं ना, पहले बनाने की गलती होगी तो ये सुना, वो चीजें नहीं. ग्रेसफुली यू हैव टू टेक दैट. कॉम्पिटेंसी, हाँ, अब मैजिक मींस फॉर्मूला आ गया, देखिए है ना, K into S into A. What is K? और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मैंने इनका नाम क्यों लिया, मैजिक इसका into, यानी that will, if we multiply these two things, that will increase too many times. Not this one is plus or minus. This one is a multiplication that will increase too much. If we will multiply knowledge with skills and skill with attitude, काम आसानी से होगा. अगर ग्रेसफुली लेंगे ना तो दिमाग क्लियर रहेगा, काम होगा. एनर्जी उसमें लगाइए, इसमें मत लगाइए. अरे यार मुझे ही बार बार कर देते हैं, सब काम मेरे ऊपर लाद देते हैं, क्या मैं ही हूँ, सीरीन मिस क्यों नहीं है, नवरा मिस क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है. पहला आता है कि ये सबका, ये ह्यूमन नेचर है, नहीं है. लेकिन उसमें एनर्जी लगाने के बजाय हम करें कि जो टास्क मिला है हमें उसको हम कैसे कर सकते हैं, तो आपकी एनर्जी भी सेव रहेगी एंड यू विल बी एबल टू यूटिलाइज योर एनर्जी मोर प्रॉपर्ली. Again that thing is there, competency is equal to this one. Come to that figure. Yes. Now we have decided the task. What is this one? This one is at first look, it is thing that is shown that this person is a labor. For labor, mind should be torrent power. That's good. Thank you. Yes, that thing is very good. Whatever I wanted, that we are taking the example from the reality, and that examples are, we are familiar about these examples. तो टोरेंट वालों को देखा है ना काम करते हुए, लेकिन हम अपने काम नहीं करते, दूसरे के काम को देखते हैं. सीखते हैं कि नहीं कुछ? एक चीज सीख सकते नहीं टोरेंट वालों से, कि रात में 3 बजे लाइट कटी, कॉल किया गया, उन्होंने कहा सर लेबर आ रहे हैं, बुलाया गया, आधे घंटे में आएंगे, 1 घंटे में. What the service job they are doing. Yes, हम नहीं कह सकते कोई जाहिल है, उनका काम खराब. They are skilled for a particular type of work. हम कितने भी पढ़े लिखे हैं, B.Ed है, M.Ed है, रिसर्च किए हुए हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, ये काम तो भैया नहीं हो. So we are not have the competency of the torrent persons. They can do that. Yes, so the competency is different for the different person there. Next one. Describe competency in your vocational area. The most important thing is there anybody's competency can be calculated or evaluated in his or her field. Everybody is not, सारे बच्चे मैथ्स में अच्छे नहीं होते हैं, कोई नहीं होते हैं ना, 1-2 होते हैं मैथ्स में. कुछ बच्चे इंग्लिश में अच्छे होते हैं, कुछ के बारे में कहा जाता है कि इसका सब तो बेकार है लेकिन ये बहुत अच्छा है. और फिर अदर एक चीज आ रही है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. इसका बेसिक क्या होना चाहिए? एक्स्ट्रा करिकुलर क्या बच्चों के माइंड में डालें, हम लोग उसको डिस्करेज कर देते हैं. वी वांट द रिजल्ट. देखो जा रहे हो, जीत गया, दैट इज वेरी बैड. वी हैव टू टेल आवर स्टूडेंट्स जाना है, पहले तो पार्टिसिपेट करना है. तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मुस्लिम कम्युनिटी में, आई एम सेइंग डायरेक्टली, they are not participating the things one. They are not ready to fill the forms unless or until you will not fill the form of any competition or anything. How you will able to complete that? The first basic, you have to fill the form. You have to be ready that one thing is coming. You have to be ready for doing the things. Then you will able to do that. ये कहा गया ना, बचपन से सुन रहे हैं, पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा तब मदद है. आप अपने घर में बैठे हैं, सोचेंगे बाहर रिक्शा मिल जाएगा, मिलेगा?
नहीं ना, उतने स्टेप्स आपको निकलने पड़ेंगे बाहर आके, तब पॉसिबिलिटी आ रही है ना कि रिक्शा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हम लोग को जैसे लेट अगर होता है बाई चांस 2-3 मिनट, तो हम सोच लेते हैं कि यार आप तो लेट मार्क लग ही जाएगा और लेट कर, लेकिन दैट इज ऑलवेज कंसीडर्ड। चलो आज तो हाफ डे लग ही गया 1 घंटा जाने पे, आज रह जाते हैं, जब लग ही गया तो आधे ही लगा देते हैं। लेकिन वन थिंग इज वेरी बैड फ्रॉम आवर पार्ट कि क्या हम अपने काम को सही कर पाएंगे, वो तो पेंडिंग रह जाएगा ना, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ बॉस को सेटिस्फाई करने के लिए काम मत करिए, अपने भी सेटिस्फाई करने के लिए। अब आता, now we are coming, now our new syllabus, whatever the curriculum we have, that is a vocational base. What is vocational? Other than this regular teaching and learning one, you have to use the aids. जैसे आप लोग बहुत सारे एड बनाते हैं ना, टीचिंग एड्स, उसका यूज क्या है? वेस्ट ऑफ टाइम है ना, जो मेरे यार बड़ी मेहनत लगती है इसको हटाने। नो, that will be giving the real time experience to the students. किसी बच्चे को अगर मैथ्स में आप पढ़ाते हैं, एडिशन नहीं समझ में आता है, तो क्या करेंगे? कुछ और दे लेते हैं, और कोई ऐसा एग्जाम्पल जो क्लास में सॉर्ट आउट हो जाए, शॉप पे ना जाना पड़े, एनीथिंग। पेंसिल ले लें, 2 बच्चे को बुलाएं, फिर 2 बच्चे को बुलाएं, एड करने दें, हो जाएगा कि नहीं होगा? तो वी that one is called the competency. You are dealing with the problem or not? So too many examples we have. Next, why we are talking? I think in every workshop, every person who is taking the workshop is more focusing on the groups, because human mentality is there. The humans are acting very well in groups. Individuals, it is quite difficult. एक चीज रॉन्ग कही जाती है हमारे इलाके में कि लीडर वही हो सकता है जो अकेले चलता है, वो डिस्टेंस पे रहता है। लीडर कभी अकेला नहीं होता, लीडर के साथ तो बहुत बड़ा मास होता है, लेकिन उसको लीडर लगने के लिए थोड़ा सा अलग होना पड़ता है। लीडर तभी बनता है जब उसके पीछे फॉलोअर्स होते हैं। In a small group, and now we are coming to the actual what, how to do this one. A small group of 4 discuss each other's description of a competency. हम कुछ भी ग्रुप बनाते हैं तो बच्चों को, अभी जैसे ग्रुप बन रहा है स्पोर्ट्स का, स्पोर्ट्स इंचार्ज है कोई? आई थिंक नो। क्या करते हैं? What you are doing to form a group? Age wise, one thing is there. Age wise, any other thing? Age wise हो गया, after that one, after that one, skill wise, जैसे एक ग्रुप बनाना, मान लेते हैं कि 10 स्टूडेंट्स हैं, 2 ग्रुप बनाना है आपको, ठीक है? You have to form 2 groups. What the things you will consider? पहले नहीं, ग्रुप कैसे बनता है? बचपन में याद है किसी को? किसी वीकेंड में हम लोग ग्रुप कैसे बना? एक कैप्टन पहले बनता था, एक बार तुम चुनो, एक नेक्स्ट वन मैं चुनूंगा। ऐसा नहीं होता था ना कि पहले किसी ने 5 चुन लिया, बाद में चुना। क्यों? वो कभी सोचा है? जितना बचपन में हम लोग अच्छा एक करते थे, आज करते हैं नहीं कर रहे हैं। वाकई देख के चाहिए तो लगता है कितनी बड़ी चीज थी वो, इतनी बड़ी एज में हम लोग ये करते थे। एक तुम चुनो, एक हम चुनो, कि हम देखते थे ना कि हाँ ये वाला तगड़ा रहेगा, फिर माइंड में हो गया, उसने ले लिया। That's the proper way to form a group. अच्छा, टॉस क्यों होता है? चलिए देखो, मेरी जो समझ है क्या वो आता है कि नहीं? चलिए फर्स्ट चांस हो जाओ। मेरी समझ से टॉस इसलिए होता है कि आगे फर्दर के कंफ्यूजन को दूर किया जाए, क्योंकि काम खत्म होने के बाद हम लोग कहते हैं ना कि अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा होता। टॉस हो गया, अगर हम लोग कहते हैं कि अगर जो है अंपायर ने मुझको पहले दिया होता तो मैं जीत जाता। अब ये चीज हम लोग लक पे डाल देते हैं कि लक नहीं था मेरा, इसलिए हमको बाद में खेलने मिला। एक होता है टॉस जीतने के बाद आपको थोड़ी सी फ्रीडम मिलती है, लेकिन क्या वो रिजल्ट अफेक्ट करती है? कोई वो नहीं। कोई टॉस जीत के पहले बैटिंग लेता है, कल देखिए एक टीम हारी, पहले बैटिंग लेके बुरी तरह से हार गई,
तो कोई जरूरी नहीं, आप जब तक परफॉर्म अच्छा नहीं करेंगे यू विल नॉट गेट। तो वो डाउट आपका खत्म हो जाता है, बेसिक डाउट कि जैसे होता है ना कि अगर मुझे पहले चांस मिला होता या मुझे पहले दे दिया इसलिए मैंने खराब किया। ये भी कुछ लोग कहते हैं क्योंकि उनको दूसरों से आइडिया मिल सकती है। मान लो अभी किसी से हम कहें कि रैंडम 2 लोगों से स्पीच देना हो तो क्या होगा, पहले कोई आना चाहेगा? अगर मुझे मौका मिले मैं तो सबसे पहले आऊँगा, क्योंकि वो मेरे लिए फ्रेश आइडिया होगी, मैं जो बोलूँगा वो मेरा होगा। उसके बाद भी जो लोग भी आएंगे वो जरूर मेरी कॉपी करेंगे कुछ ना कुछ, और वहाँ गलती होगी तो एक्सक्यूज हो जाएगा, लेकिन जितनी बात जाएगा तो गलती का चांसेस कम हो जाएगा। जैसे एक चीज़ क्रिकेट में खासतौर से होती है, लास्ट ओवर में अगर 10-15 रन चाहिए तो बॉलर चूज करने में कैप्टन अगर हार गया तो फिर सारी जिम्मेदारी उसको क्यों दिया। और जो ये लोग उस पर डिस्कस करते हैं उनसे बड़ा जाहिल कोई नहीं है, उससे बड़ा जाहिल कोई नहीं है। तो इसीलिए अच्छा वहाँ लीडर की जरूरत हुई ना, लीडर ही डिसाइड करेगा ना। और दोनों केसेस होते हैं, कभी वही बॉलर 1 रन भी नहीं देता है, कभी एक ओवर में 36 रन भी बने हैं, तो दैट्स वो कोई डिस्कशन का नहीं। तो उसी सब जो हम लोगों ने बनाया ना लॉटरी सिस्टम, टॉस, थोड़ा सा उसको कम करने के लिए, कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए। यस, 4 के ग्रुप को क्यों कहा जाता है ज़्यादा, सबसे अच्छा ग्रुप जब भी होता है वो 4 का ग्रुप होता है, क्योंकि ज़्यादातर ह्यूमन बीइंग में 4 ट्रेड्स ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। तो 4 तरह के लोग ले लिए, दैट काम चारों साइड कंप्लीट हो गई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, यही है। और कोई भी चीज़ क्लियर क्या होती है 3 बार के बाद। हम लोग बचपन में एक चीज़ पढ़ते थे, हम लोग बचपन में खेलते थे तो गांव में कही जाती थी तेलिया के 3 नहीं, 3 बार में मानेंगे, अगर 3 बार एक ही आ गया तो मानेंगे। उसका मतलब तो मुझे आज भी नहीं मालूम क्या है, लेकिन मेरी समझ से यही आ रहा है कि 3 बार में, है ना। उसमें कुछ हमारे कस्टम भी 3 बार में फॉलो होते हैं, नमाज में बहुत सारी चीज़ें 3 बार करते हैं, और गिव द एग्जैक्ट कंफर्मेशन। और जब भी हम रैंकिंग की बात करते हैं 3 पे आके सब रुक जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। मेडल्स जब देखते हैं तब भी फर्स्ट सेकंड थर्ड। क्योंकि मैं इसको इसलिए ला रहा हूँ मेडल्स में, क्योंकि ये हमारे एग्जाम्पल आज सामने है। सारे लोग परेशान है कि हमको स्पोर्ट्स डे का तैयारी करनी है, बच्चों को, अपने बच्चों को ग्रुप में लाना है, ये इवेंट्स करने हैं। फिर उसके बाद कल एक मीटिंग हुई, बाई चांस मैं मिस कर गया, आई हैवंट गॉट द मैसेज फॉर द प्रॉपर टाइम एंड दैट वाज तो, लेकिन एक डिसाइड हुई कि नहीं हुई, किस बेस पे सिलेक्शन हुआ कि इनको रेस का इंचार्ज बनाया जाए, इनको इसका इंचार्ज बनाया जाए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रीवियस परफॉर्मेंस, पोटेंशियलिटी, कॉम्पिटिबिलिटी, कॉम्पिटेंसी, ये चीजें हुई ना। और कुछ लोगों से कहा जाता है कि कोई कहता है नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, तो कहा जाता है कि नहीं मुझे मालूम है कि तुम कर सकते हो, करो। ये भी होता है ना, क्योंकि बहुत सारे ह्यूमन बीइंग को अपनी कॉम्पिटेंसी मालूम नहीं होती है, लेकिन आप जिसकी नजर के अंदर काम करते हैं उसको मालूम होता है। ये भी होता है, बहुत सारी चीजें आपको नहीं मालूम होगी, लेकिन जो आपको देख रहा है, मैं अंडर नहीं मानता हूँ, नजर में होते तो उनको मालूम होता है। यस, नेक्स्ट वन, यूज द फीडबैक। फीडबैक बहुत जरूरी है। आपको अभी मैं बाद में 5-6 दिन के बाद एक फीडबैक फॉर्म दूंगा, तीनों को मिला फ्रॉम कॉलीग्स टू इम्प्रूव ऑन योर डिस्क्रिप्शन। हम लोग अपनी आइडिया को छुपाए रहते हैं कि मेरी आइडिया तो ये है, और ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कोई कहता है ना पहले मैंने कहा था, उसने कुछ नहीं कहा, बाद में अपने से लपेट के अपना है ना। दुनिया का बहुत बड़ा बिजनेस भी इसी तरह से चलता है। तो आइडियाज अगर आप रोक देंगे तो मर जाएगी, क्योंकि आप हर जरूरी नहीं है कि जिसके पास आइडिया हो उसके पास वो रिसोर्सेज भी हो इम्प्लीमेंट करने। कंपनीज क्यों हायर करती हैं कि हाईएस्ट पेड एम्प्लॉयज? व्हाट्स द रीजन? लोग कहते हैं ना कि अरे एक को जो है 1 लाख देने की क्या जरूरत है, 5 लोगों को 20-20 हज़ार देके 5 को एम्प्लॉय कर लें, बिकॉज दे डोंट नीड कॉम्पिटेंसी इज देयर। एक आदमी असल क्या होता है, आइडिया निकालना। हम लोग क्या काम, आप लोगों ने कभी एडवर्टीजमेंट देखे हैं, उसी का टैग लाइन होता है, क्या होता है, सब कुछ वो टैग लाइन पे दुनिया चल रही है, सारी एडवर्टीजमेंट टैग लाइंस पे है। वो बहुत बड़ी चीज़ है कि आप जाइए समझिए उसकी मीनिंग, कई सेंस में समझेंगे तो यू विल गेट द क्लियर कट आइडिया अबाउट दैट। जस्ट समझ सर, नेक्स्ट वन, सम ऑफ यू विल बी आस्क्ड टू प्रेजेंट टू द होल ग्रुप। ग्रुप जब बनाते हैं तो क्या होता है,
तुम लोग आपस में डिस्कस कर लो। तो वहाँ आदमी क्या करता है, एक तो लीडर बना लेता है कि चलो, जैसे अभी क्विज कंपटीशन हुआ था तो क्या हुआ था, जब एक आया था उसको तो एक सेलेक्ट हुआ ना कि तुमको ज्यादा आता है तुम जाओ या तुम कर लो, वरना बाकी लोग डिस्कस करके आंसर। तो दैट विल बी मोर कंफर्टेबल। नेक्स्ट वन, बस ये क्या है? Construction is going on. अच्छा, क्यों खर्चा करने की जरूरत है यार, काम में तो खुद ही खर्चा लगता है। हाँ साहब, भाई इसको लगाने से कंपनी का नुकसान है, फायदा तो नहीं है। नुकसान है ना कंपनी का, फायदा किसका है? हमारा आपका फायदा नहीं है। नहीं, others, everybody will able to know that once we don't have to move from this area, and that will stop the whatever the different problems are coming, they will able to overcome. एक मॉनिटरी उनका खर्चा बढ़ेगा लेकिन डिस्टरबेंस से वो बच जाएंगे। ये कहीं भी लगा देंगे, अक्सर होता है कि एक साइड का रोड ब्लॉक हो जाता है, लोग दूसरी तरफ से जाते हैं। तो ये इंडिकेशन जरूरी है, वरना रोड्स पे क्यों साइन बोर्ड्स लगाए जाते हैं, स्कूल में नाम क्यों लिखा जाता है, सब लोग तो जानते हैं। फॉर दी अदर्स वन हु आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू दैट वन, दे शुड नो इट। हमारा नाम क्यों रखा है, to identify them, that will be more easy। तो उसी तरह से ये चीजें इसलिए इंडिकेशंस रहते हैं कि सब लोग क्लियर कट जाएं, वरना पैसा वेस्ट नहीं होता है, पैसे का यूज किस तरीके से किया जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ पैसे का वेस्टेज बहुत होता है ना, एक चीज बनती है, एक साल बाद अगला प्रोजेक्ट आता है, उसी को तोड़कर फिर वही बनाता है। आजकल देखिए बिल्डिंग में नाला जो मजबूत भी बना हुआ है, उसके ऊपर का तोड़ के फिर उसको बनाता है। तो यहाँ पैसा प्रॉपर यही होता है, कॉम्पिटेंसी और रिसोर्सेज को प्रॉपर मैनेज करने में डिफरेंस है। सर, इसका बेस्ट एग्जांपल आज नीचे हम लोग पोछा लगाए थे, वो क्वेश्चन का बोर्ड नीचे रख दिए थे, तो जो जाएगा कि उसका इसी होता है, क्या क्या टास्क इसी हुआ, वो खराब तो नहीं होगा, दूसरा जो पर्सन काम कर रहा है और जो नहीं कर रहा है, दोनों में कोऑर्डिनेशन बन जाएगा विदाउट सेइंग, कि काम कंटिन्यूअस चलता रहेगा। ये सब एग्जांपल हम लोग रोज देखते हैं और करते भी हैं। नेक्स्ट वन, कॉम्पिटेंसी और कॉम्पिटेंस। सब लोग कहते हैं, बहुत आती है कि सर जो है रायली सर को काम देते हैं, मुझको क्यों नहीं देते, मैं भी तो कॉम्पिटेंट हूँ, क्या मेरे पास डिग्री कम है? हाँ, क्या आता है कि नहीं? वही डिफरेंस है कॉम्पिटेंस और कॉम्पिटेंसी में। और आदमी काम किसको देगा? सबसे बड़ा एक मोटो होता है कि जिससे जल्दी मिले, होता है नहीं होता, और सही मिले। अच्छा, अगर मुझको कंपेयर करना हो, फॉर एग्जांपल रहीम सर और अनस सर में, तो मैं किसको करूँ? वो करूँगा, चूज करूँ। वो रियल यहाँ के सिचुएशन पे बात करते हैं, किसको करेंगे? रीजन बताइए सही सर, एक रीजन बताइए। आप बताइए अमन। सर देखो, अगर सर ड्राइंग वगैरह नहीं, अगर एक वर्ड में आंसर, आई एम नॉट, अगर एक रायली सर सुपरवाइजर हो गया, नहीं, बस एक आंसर में दीजिए कि किसको करेंगे, क्यों? ड्राइवर की स्किल्स आ गई, एक चीज बेसिक आई नहीं, वो तो ही दिन आपके लिए डिसिप्लिन। सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए, सबसे बड़ा चीज ये होनी चाहिए कि वो सिर्फ 2 दिन के एम्प्लॉई हैं, ये 6 दिन के। यही फर्क होता है टीचर और नहीं, वो इसलिए भी हो सकता है कि ये चीजें आपको पता नहीं है, मैं अनुरोध से कि मुझे ज्यादा मालूम है, ये रीजन ये हो सकता है। तो वो पर्सन टू पर्सन, यही मैं सिर्फ ये शो करना चाहता था कि सेम क्वेश्चन दिया गया, बट इट इज आंसर सॉल्यूशन इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट। दैट्स क्लियर। मेरे लिए तो सबसे पहले यही होता है, मैंने भी अपना भी दे दिया, आई एम आल्सो द पार्टिसिपेंट ऑफ द क्वेश्चन आंसर सेशन, दैट्स व्हाई आई हैव आंसर दैट। मैंने जल्दी इसलिए किया कि कहीं आते आते आ न जाए। ओके, देखिए मेरा भी क्या है, क्लास लाइव होनी चाहिए। लाइव क्या हो? रियल टाइम जिंदा होना चाहिए ना, जिंदा है तो कुछ
दिखना चाहिए। Competency describes what has to be done and how well. एक होता है ना कि फिजिक्स में, फिजिक्स का कौन है टीचर है कोई? यस, ऑप्शनिस्ट। आपके लिए अगर जनरल में फिजिक्स का कोई एक चीज बतानी हो, एक वर्ड में बतानी है, तो क्या होगा जो सबके लिए सुटेबल? कोई भी एक चीज बताइए। न्यूटन्स लॉ। Newton's law is not a single word. It's a 3 law is there. क्यों जा रहे हैं फिजिक्स में? कितने लोग फिजिक्स जानते? बड़ी मेहनत से एक को मिली फिजिक्स बात, भी आप लोग फिजिक्स में जा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत सारी चीजें हो गई, लेकिन मेरे हिसाब से फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है किसी भी उसमें प्रॉपर डायरेक्शन। अगर फिजिक्स से डायरेक्शन निकाल दें, लाइफ से अपने डायरेक्शन निकाल दें, तो उसकी एक्चुअल डेफिनेशन कभी सही नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? काम। काम क्या है? काम की डेफिनेशन क्या है? वर्क। If anything is displaced from one place to another one, that is called work. मैं ये ढकेल रहा हूँ, बताइए क्या है? I am using force, but work is done. क्यों नहीं हो रहा? Why it is not? Because I am not competent of that one. Because I doesn't know. I have the knowledge about that one. हम इसको ढकेलें तो नॉलेज है तभी तो हम इसको कर पाएंगे, और जब तक हम इसको डायरेक्शन, प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं करेंगे, नो वर्क इज जेन्युइन। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है काम करने का, एंड हाउ वेल दैट वन इज डन। किसी को दिया जाए कोई चीज की डेकोरेट करके लाओ, कुछ लोग आर्ट्स वाले नहीं है, चली गई ऐसा सर होगा, तो उनका जितना अट्रैक्टिव होगा दूसरे का नहीं होगा, बिकॉज ही इज कॉम्पिटेंट होता है। ये चीजें हैं, तो यही कॉम्पिटेंसी हमको चेक करना है, एंड वी हैव टू डिवाइड द रिस्पांसिबिलिटीज अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्पिटेंस। वेल जरूरी है। अच्छी बात बताइए कि रोज हम घर में खाना बनाते हैं, रोज फैमिली के साथ बैठ के खाते हैं, एक दिन कोई बाहर का आ जाता है, तो क्या हमारा वे कुछ हद तक चेंज होता है कि नहीं होता है? कौन सा पार्ट चेंज होता है? दैट डेकोरेटिव पार्ट। हम अपने घर में रोज सलाद बनाते हैं, we are not presenting like that one. The same thing we are using, but the presentation is different. That is called the how well we are doing. ये तो सबकी समझ में आया ना? जरूर जाइएगा या आपके पास गेस्ट आता है। भाई एक चीज है, जनरली मेल्स को क्यों बाहर का खाना अच्छा लगता है? कभी आप लोगों ने रिकॉग्नाइज किया? बस प्रेजेंटेशन इज क्वाइट गुड। जो पिज्जा बाहर से पैक होके आता है उसका कुछ और होता है, लेकिन अगर आप अंदर जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, अगर आप वाकई कॉम्पिटेंट है अकॉर्डिंग टू दैट वन, तो आप प्रेफर करेंगे घर वाले। लेकिन पहले इंस्टेंस में अच्छा तो वही लगेगा। जैसे होता है ना कि कहा जाता है कि शक्ल बहुत अच्छी होना इज नॉट इम्पोर्टेंट, हाउ यू आर बिहेविंग टू द अदर्स वन, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यस, नेक्स्ट वन। Competence is the ability to do the required things to the required standard. क्यों इतना सारा required क्यों आया है? काम अच्छा वही है जो requirement के ऊपर अच्छा उतरता है। अब कितना अच्छा आज पढ़ा रहे हैं, बाहर कहीं बोल रहे हैं, that is not important. किस जगह पे कितना अच्छा बोल रहे हैं, that is important. Place and the that should be more important. Synchronize जिसको कहते हैं, एनुअल फंक्शन भी है ना, सिंक्रोनाइजेशन। सिंक्रोनाइजेशन क्या है? एक्टर वही अच्छा है ना? क्यों आजकल जो है 3 खान पे दुनिया क्यों चल रही है? व्हाट्स द रीजन? है ना कुछ स्पेशलिटी? बहुत सारी चीजें हैं, और इन तीनों ने जो है एज वाला कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। आज से पहले हम लोग अपने पहले में थे 40 साल बाद लोग बूढ़े कहे जाते, लेकिन ये सबसे बड़ा इन तीनों का है कि 60 साल में भी आदमी हीरो का रोल कर सकता है। यस, दे आर डूइंग इट प्रॉपरली एंड वेरी वेल। अभी रिसेंट में कौन सी फिल्म है? शाहरुख खान। इट इज स्टिल मूविंग टू द करोड्स। तो देखिए क्या कहना, मेरा मकसद कहने का क्या है, अगर आपकी कंटिन्यूअस मेहनत है, कॉम्पिटेंसी है, प्रॉपर टाइमिंग है, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। वरना इन लोगों को अभी तो बाप का रोल करना पड़ता है।
तो that is the thing कि how you are doing your work today, that reflection will be seen tomorrow. Next. CBT क्या है? वही है ना, competency based. Why current weaknesses? क्यों जानना जरूरी? टेस्ट की जरूरत क्यों है? मेरे ख्याल से अगर ये कंटिन्यूअस रहा आप लोग रहे तो मेरा भी एक साल का केस टीचर्स का एक टेस्ट वो बेस नहीं करेगा कि आपको मैथ्स में a+b = क्या होता है, वो डिफरेंट है। आइडियाज पे टेस्ट सबका होना चाहिए, हमारा भी टेस्ट होना चाहिए, लेकिन हमारा टेस्ट आप नहीं लेंगे, हमारा टेस्ट लेंगे, आपका टेस्ट हम ले सकते। तो वो अपने आप को तैयार रखना चाहिए टेस्ट के लिए। उससे क्या होता है, हमारी कॉम्पिटेंसी बढ़ती है। जब हम अभी बच्चे क्या होता है, हम लोग कहते हैं ना अपने बच्चों को भी और यहाँ के बच्चों को जो स्कूल में पढ़ाते हैं, बेटा एग्जाम आ गया अब तो पढ़ो, और वो प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है ना। टास्क को, किसी भी टास्क को ऐसे ग्रेस लीजिए, वो सबसे बड़ी चीज है। चलिए अमन सर, curriculum and teaching methods are not responding to the labor market demand. हाँ, अब आता है क्रिटिकल एस्पेक्ट हमारा, जो सब लोग हैं, क्या हम जो पढ़ा रहे हैं या जो पढ़ के आए हैं वो करंट रिक्वायरमेंट को पूरा करता है, डिमांड को, कि नहीं? हमारा एजुकेशन डिमांड्स को पूरा करता है? नहीं। हमारे यहाँ बच्चे 12 साल 15 साल 20 साल पढ़ने के बाद भी बेकार रह जाते हैं। What's the reason? Because our curriculum is not the demand of the market. अप टू द मार्क एक लेवल पे है, giving the theoretical knowledge, that one is the best curriculum in India what we have, but this one is not giving the skill. We are not able to produce the skilled person according to the demand. कभी कभी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर देते हैं, तो अमेरिका और इंग्लैंड वेस्टर्न कंट्रीज उसको चूज कर लेते हैं, क्योंकि एक टाइम में जब हमारी डिमांड कम थी तो हमारे पास IIT इतने अच्छे थे, लेकिन अब डिमांड बढ़ी, हमारे IIT उस तरह से नहीं काम कर रहे। तो जितने भी हमारे एक्स्ट्रा, जिसको कहते हैं ना कि ज़्यादा दिमाग वाले बहुत अच्छे थे, जो क्रीम थे, ऑल आर CEOs ऑफ द डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज, मैक्सिमम इंडियंस। तो वो क्या होता है, वो माइग्रेट, क्योंकि हम लोगों ने एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर दिया और फिर अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्पिटेंसी हम उनको पेमेंट नहीं दे पाए। दैट्स व्हाई दे हैव माइग्रेटेड। आप लोगों ने अभी रिसेंट न्यूज़ सुना है, पढ़ा है कि नहीं? एवरी डे 350 Indians are taking the citizenship of other countries, और वो 350 कौन लोग ले रहे हैं? हमारे जैसे थोड़ी जो किसी काम के लिए वो ले रहे हैं। वो कौन से हैं? जो अपने फील्ड के मास्टर हैं, चाहे तो पैसे में मास्टर होंगे, बहुत ज़्यादा पैसा होगा, या किसी एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी में होंगे, वो लोग मूव कर रहे हैं। जैसे कहीं मोदी गए ना बाहर, किस बेस पे गए? हम और आप चाह के भी भाग पाएंगे बाहर? कोई लेगा भी नहीं यार। उनके लिए डिफेंड करने के लिए पूरा का पूरा कंट्री खड़ा है, क्योंकि उनके पास इतना है, तो दे आर द कॉम्पिटेंट ऑफ दैट। चलिए, तो क्या एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस होने चाहिए? अब हम लोग जब भी कोई भी बात करता है, कोई भी वर्कशॉप होता है, तो उसमें आती है स्किल बेस्ड लर्निंग एंड प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट फॉर द फ्यूचर, फॉर द न्यू मार्केट कमिंग टू दैट। तो आज किसमें आना है? सही सर अब कुछ हो रहे हैं। अब मेरी बात आएगी रिसेंट IT सेक्टर। आज आप कंप्यूटर के बेस पे जॉब तो छोटी छोटी मिल ही जाती है, 2-4 हज़ार 5,000। जैसे हमारे यहाँ पे टीचर को अपॉइंट किया था, पहले देखा जाता है नीचे की he or she has the computer knowledge or not. अब बेसिक हो गई है, क्योंकि because without that one no work will be done properly. तो एक चीज ऐड हुई कि नहीं, इसकी डिमांड बढ़ रही है। क्या हम अपने सिस्टम को उतना एडवांस कर पाए हैं या मॉडिफाई कर पाए हैं? नो। अब नाउ वी हैव टू चेंज दैट वन। अब क्या लाना है? नई आइडियाज आपको डेवलप करना है, अपने एजुकेशन सिस्टम को ऐसा बनाना है कि वो नई आइडियाज लेके आए। जैसे अभी हम एक सुनते आ रहे हैं, अभी एक आप लोगों ने 2-3 दिन पहले का न्यूज़ है, यूपी की गवर्नमेंट ने स्कूल्स में मोबाइल टोटली बैन कर दिया। स्कूल में मोबाइल का यूज टोटली बैन कर दिया। स्कूल पूरा
स्टूडेंट के साथ साथ टीचर्स का भी। और वाकई मोबाइल के बाद से स्कूल का स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, पढ़ाने का, पढ़ने का, क्योंकि सब लोग यूज कर रहे हैं। अभी पता चला आपकी भी गलती नहीं है, आप पढ़ा रहे हैं, मेरे तरफ से कॉल आ गए काम से, फिर वो टीचर नहीं उस 30 मिनट पढ़ा पाए, वो चला जाता है देखो। तो इस चीज को खत्म करने के लिए, लेकिन ऐसा सेटअप हो चुका है कि वो काम नहीं। अभी कोई 5 मिनट मैसेज नहीं देखा तो पता चला उसको सुनना पड़ेगा कि क्यों नहीं आया। नहीं है ना, नीड ऑफ द आवर है कि नहीं है। अब क्या है, हमारी आदत कहाँ है, दिमाग हमारा आधा रहता है, हर 2 सेकंड के बाद जल्दी से देख लें कुछ आया तो नहीं है मैसेज, मेरा मिस का मैसेज आया, मेरा आया कि नहीं आया। है टीचर्स में एक है हेजिटेंसी कि उसी चक्कर में कई हम अनवांटेड मैसेजेस को देख लेते हैं इस डर से कि कहीं कोई इंपॉर्टेंट मैसेज ना हो, तो हमारी एक तरह से एनर्जी तो उसमें लगी है। तो ये सब चीजें वी हैव टू टेक और डील विद दैट ऑल दिस थिंग। तो कैसे यूज करेंगे, कैसे हम कॉम्पिटेंसी लाएंगे बच्चों में, क्या उतना टाइम है हमारे पास? नहीं है। अब जैसे नई एनईपी जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज टोटल डीलिंग विद द वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल, जो बहुत ही मुश्किल काम है प्रेजेंट इंडियन स्कूल सेटअप में इम्प्लाई करना। जैसे एक सीधी सीधी बात है, कमिंग टू दिस वन, कि उनको पढ़ाई वाला भी काम कराना है, प्लम्बर वाला भी काम कराना है, इलेक्ट्रीशियन, यही है वोकेशनल ना, और मेजर पोर्शन ऑफ जॉब्स इसी में है। आज इसकी डिमांड हर जगह है ना, यूनिटी में है कि नहीं है, इलेक्ट्रीशियन बहुत सारे होंगे लेकिन तब भी डिमांड है, तो ये है मार्केट। तो इस तरह से स्कूल को करना है, लेकिन उसमें कई प्रॉब्लम्स आएंगी स्कूल में। एक तो इंफ्रा नहीं है, दूसरे टीचर हु इज टू बी ट्रेन्ड इन अ पर्टिकुलर फील्ड, दे आर नॉट स्किल ऑफ दैट। हमसे अगर कोई कहे कि हम किसी बच्चे को जो है इलेक्ट्रीशियन बनाए तो दैट्स पॉसिबल, ये नहीं होगा, तो ये सब चीजें ड्रॉबैक्स हैं। लेकिन क्या उस ड्रॉबैक के साथ वो काम ना किया जाए? आज अगर हम करेंगे तो 2-4 साल 5 साल बाद आ जाएगा, जैसे कंप्यूटर वाला केस है। अब आ गया कि नहीं आ? एवरीबडी इज फैमिलियर अबाउट दैट वन, वी आर डूइंग दैट वन। और आने वाला जो सबसे डेंजरस चीज है वो है एआई। डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस है। आज हम सीधे सीधे कॉपी, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल इस वक्त इंडिया में है क्योंकि वो पेड, जिस दिन फ्री आ गया ये ना, फिर तो हम लोग का काम ही खत्म हो जाएगा, कोई एप्लीकेशन में गलती ही नहीं मिलेगी। सीधे कॉपी करके एआई से मारेंगे, एप्लीकेशन एकदम तय। नहीं करते हैं वो, पता एआई वाली लैंग्वेज मुझे पता है, वो मुझे मालूम है। मेरे पास जो भी एप्लीकेशन आता है, एक आए थे अभी डॉक्टर जो है, तो एआई, मैंने कहा सर आप एआई यूज करते? कह रहे नहीं मुझे नहीं पता। मैंने कहा एप्लीकेशन? कह रहे हाँ सर वो मेरे उसने बंदे ने कॉपी करके, तो वो डेफिनेट लैंग्वेज पता चल रहा है। ह्यूमन का राइटिंग जो भी होगा, वर्ड्स का चूज होगा वो अलग होगा, उसका एक सेट पैटर्न है, वो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन, एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस आर, यार एडवांस चल रहा हूँ मैं क्या, आने से पहले एक चीज आ जाए, नॉट रेस्पॉन्सिव टू TWET needs। TWET क्या है, कोई बताएगा? छोड़ दे क्वेश्चन, ये आप देख लीजिए, कुछ वोकेशनल है, कुछ एजुकेशनल है, कुछ ट्रेनिंग। अब आप उसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ, ये तो है ही है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, क्वालिफाइड, कॉम्पिटेंट एंड सबसे देखिए मोटिवेटेड ट्रेनर्स। अच्छा एक बात, मैं मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है, क्या ये 3 लोगों ने वर्कशॉप किया है, आप कुछ मोटिवेट अपने आप को महसूस कर रहे हैं? हाँ, a little bit or no? A little bit भी है तो that one is too much for us. Or one thing should be there, we are already ready to polish ourselves. Unless or until we will not polish that one, whatever the good materials we have, that will be not. That's clear? Next one. देखिए एक चीज मेरे अंदर जो कमी है, मैं बाकी वर्कशॉप इसलिए नहीं अटेंड किया, मैंने कहा कहीं
मैं इसके बाद अगर मेरा नहीं होता तो मैं करता। मैं ये सोच रहा था कहीं मैं कॉपी ना करने लगूं, मुझे कॉपी बहुत अच्छी नहीं लगती है। आ जाएगा, डेफिनेट आएगा वो चीज़, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि हम उस चीज़ को और अच्छा करें। जब ये कॉन्सेप्ट आता है तभी ये चीज़ आती है, क्योंकि अगर हम सीधी सीधी बात करेंगे तो दैट विल नॉट बी विद द मसाला। है मसाला नहीं, कुछ लोगों की बात करने का तरीका बड़ा अच्छा होता है, कुछ लोगों का बड़ा रुखा होता है, क्योंकि वो टू द पॉइंट्स बात करते हैं, यस और नो, बीच में नथिंग। बच्चे कहते हैं, बच्चे जितना अच्छा देते हैं टीचर के बारे में व्यू ना, अभी मैं टीचर ने दिखाया कि इससे मैं भी वो नहीं पॉइंट आउट किया मेरे बारे में। Absence of institutions leading TWET and labor market। क्या हमारा रिसर्च है, क्या हम अपने बच्चों को इस तरह से पढ़ाते हैं कि भिवंडी की रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर सके? नो, हम उनको ऐसे लिए प्रिपेयर करते हैं जिसका उनके बारे में कुछ पता नहीं है। भिवंडी के लिए प्रिपेयर करते हैं नहीं। एक सेट टारगेट है हम लोग के पास, दो चीज़ों का, एक वो भी शॉर्ट फॉर्म है जेई और एनईटी। क्या सारे लोग डॉक्टर? अभी देखिए एक चीज है ना कि हर साल जो है अराउंड 20 लाख स्टूडेंट्स आर अपीयरिंग फॉर द नीट एग्जाम, और हमारे पास मेडिकल कॉलेजेस कितने हैं, कितनी सीट्स को हम अक्यूपाई करते हैं? 52,000 गवर्नमेंट सीट्स हैं प्लस प्राइवेट मिला के अराउंड 80,000 तक, और उस 80,000 के लिए 20 लाख लोग प्रिपेयर करते हैं। जो फॉर्म भरते हैं प्रिपेयर करने वाले तो और ज्यादा, और बाकी इसका मतलब क्या हुआ? 19 लाख लोग बेकार हो गए। तो हमारे पास बैकअप नहीं प्लान, जैसे नीट में नहीं आए फिर वो बैकअप नहीं, आधे उसमें फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आज तक जो है रिपीट करते रहते हैं, दे आर नॉट गेटिंग देयर चॉइस स्कीम और द थिंग्स वन देयर। तो इस हिसाब से, और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो सबसे बड़ी वजह है कि हमारा जो एक चीज़ आती है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो एक्सक्यूज नहीं है। हमें चाइना से एग्जांपल लेना चाहिए, हमें उस तरह से अपने रिसोर्सेज को इन्हांस करना चाहिए। चाइना ने क्या किया? लेबर मार्केट में पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया। अमेरिका का आईफोन भी बनता है, मेन वहीं पे होता है, अमेरिका में ब्रांडिंग होती है, सैमसंग की सारी चीज़ें सब कुछ वहीं बनते हैं, सब ब्रांडिंग होती है बाकी जगह। तो उन्होंने लेबर इतना सस्ता लेबर दिया कि उनके सारे पॉपुलेशन उसमें कवर हो गए। वहाँ भीख मांगने वाला नहीं मिला होगा, फ्री राशन खाने वाले नहीं मिले होंगे। आज इंडियन गवर्नमेंट अराउंड 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है। हाँ, 60 करोड़ लोग नहीं ले रहे हैं, बाकी 80 करोड़ लोग फ्री राशन ले रहे हैं। और वो पता नहीं एक्चुअली में कितना आ रहा है, गवर्नमेंट डाटा की बात कर रहे हैं। और जैसे यहाँ पे न्यूज़, अभी एक चीज़ मैं देख रहा था इसी पे कि हमारे पास जो कहा जाता है और कितना है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हम हर साल एक आईएम खुल रहे हैं। आज तक पिछले 5 साल में कोई आईएम नहीं खुला, कोई आईआईटी नहीं खुला। तो हम इस पे आ रहे हैं, वी आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज द एक्चुअलिटी ऑफ सब लोग, हम लोग भी उसी में हैं, क्योंकि हमारा मेंटेलिटी सेट हो चुकी है। नेक्स्ट वन, लो लेवल ऑफ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। एक राजा है, बाकी सब प्रजा, पार्टिसिपेशन नहीं। पब्लिक और प्राइवेट पार्टिसिपेशन की क्या बात है? एक हम अभी रिसेंट आ ही रहा है इलेक्शन हमारा, कुछ दिन के बाद हम लोग एक चुनते हैं जो हमें 1 महीने या 15 दिन हाथ जोड़ता है, हमारा 5 साल तक हमसे हाथ जोड़ा। बस यही है हमारा इलेक्शन का सिस्टम, यही मिलता है हमें। वो एक गरीब आदमी मेहनत करके हाथ जोड़ के जीत जाता है, 5 साल बाद मिलियनेयर होगा। That is not there. Accountability is not there from any part. कोई accountability है ही नहीं। सोच के देखिए, हम लोग वोट कैसे देते हैं यार? भिवंडी में तो मेरे ख्याल से ज्यादातर लोग पैसे पे वोट देते हैं। अभी बात हो रही थी, लोग कह रहे थे इस बिल्डिंग का इतना रुपए दिया गया था, इस बिल्डिंग का इतना रुपए दिया गया। बस दिस वन, उसके बाद हम कहते हैं कि फलाना खराब है, फलाना अच्छा है। सोच के देखिए कि वी आर चूजिंग दैट। ये यही कहते हैं ना कि यहाँ लोग बैठ के क्या करते हैं, यही करते हैं।
That should not be there. Yes, Ashwini sir, I am right or not? Definitely right. नहीं, क्योंकि इसलिए मैंने उनसे पूछा कि वो कुछ उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट नहीं। मुझे शुरू में एक चीज बहुत वो लगी कि वाकई, और मान लेते हैं जितने लोग भी हैं यहाँ पे माशाल्लाह, कोई भीख मांगने वाले बहुत कम हैं यूनिवर्सिटी में, ज्यादातर लोग सब लोग कमाने खाने वाले हैं, और इतने पैसे के लिए 500,000 माने कितना कोई देता होगा यार उसके लिए? हाँ, उस पर हम लोग भीग जाते हैं और फिर बात करेंगे कि देश में ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है। अभी एक और ये भी मेंटेलिटी है कि एक अच्छा आदमी अगर इलेक्शन में खड़ा होगा तो हम क्या कहेंगे कि ये तो खराब है, क्या किस लायक। तो जब हम नहीं सही चुनेंगे, जब तक हम अपना लीडर नहीं सही चुनेंगे, हाउ द वर्क्स विल बी डन। और एक चीज मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, दूसरे से हमने ये एजुकेशन ही की फील्ड की है, क्योंकि लीडर ही किसी को डायरेक्शन देता है, और जब लीडर की नॉलेज नहीं होगी, मैं किसी पर्सनल नहीं जा रहा, मैं पूरी हिस्ट्री लेके आ रहा हूँ, क्योंकि हम वोट क्यों देते हैं हमें नहीं पता है। अगर हम पैसे के बेस पे नहीं दे रहे हैं तो फिर बिरादरी पे देंगे, फिर कास्ट पे देंगे, फिर रिलीजियन पे देंगे, यही हमारा कंसेप्ट। ये चीज मुझे काफी अमेज लगी कि भिवंडी में ये इस बेसिस पे हो। नहीं, सब मेजोरिटी यही लगी। और कुछ लोग ये चालाकी से क्या करते हैं, जो उनके एजेंट होते हैं पैसा लेके अपने खा जाते हैं, भले देते हैं नहीं देते हैं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। तो मैं इस पे ये जा रहा हूँ कि क्या वो कॉम्पिटेंस है, इसलिए कॉम्पिटेंसी है देश चलाने की इस तरह से, तो दैट शुड बी देयर। तो पहले तो हम ही नहीं कॉम्पिटेंट है वोट देने के। किसी ने कहा था, नाम मुझे भूल रहा है, जब ये इंडिया की डेमोक्रेसी की बात थी, इलेक्शन की बात आई, कौन लीडर था, मैं नाम मैसेज करूँगा, याद आती है मुझे। उन्होंने ये कहा था कि इंडिया के लिए डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेसी उस कंट्री के लिए होती है जहाँ का पॉपुलेशन एजुकेटेड होता है। हमारे यहाँ 90% लोग आज तो नहीं जाए ना, पहले जाएंगे। आज खैर एक चीज़ है, जाए तो सही नेता चुनते थे, हम लोग जब से पढ़े लिखे लोग आ गए तभी से नेता करा करते। हाँ, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम वो चीज नहीं दे रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम या जो सोशल सिस्टम है, दैट इज नॉट अप टू द मार्क। लोग कहेंगे शरीफ आदमी है तो इसको क्या जरूरत है इलेक्शन लड़ने की, इसको घर बैठे। शरीफ की डेफिनेशन ये होगी ईमानदार की आज भी। लेकिन एक चीज है कि दुनिया इज रिकॉग्नाइजिंग दैट में जो ईमानदार लीडर्स हैं, चाहे किसी भी फील्ड में लीडर है, उनके एग्जाम्पल हमेशा रहेंगे। वो चीज है कॉम्पिटेंसी होगी। और एक चीज है डिफरेंट, उसकी वजह भी है ना कि जो खराब चीज का रिजल्ट होता है वो काफी दुनिया में फ्रूटफुल होता है, अच्छा जल्दी मिल जाता है। अच्छे काम का रिजल्ट तो दुनिया में मिलते मिलते तो पता चला आदमी सोचता है पास, तो दैट इज ऑल्सो द मेंटेलिटी होता है। तो वी हैव टू थिंक आवरसेल्फ एंड देन द थिंग्स विल बी कमिंग। प्राइवेट सेक्टर और अच्छा पब्लिक सेक्टर क्या है? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर इज गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। अब अच्छा पब्लिक स्कूल में आइए, जो पब्लिक स्कूल में है यानी गवर्नमेंट स्कूल में है, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? काम कोई नहीं है। कोविड-19 में सिर्फ वही लोग थे एम्प्लॉयज गवर्नमेंट जिनको सैलरी मिली। प्राइवेट सेक्टर में काम ज्यादा है ना? यही है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, पार्टनरशिप, ये इसी चीज को शो करता है। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में कम से, लेकिन कुछ प्राइवेट सेक्टर हैं जहाँ की सैलरी गवर्नमेंट कभी दे ही नहीं है। तो हमारे पास कई नहीं, इंडिया में भी खुद ही मिलेंगे। एक स्कूल है बेंगलोर का जहाँ के प्रिंसिपल की सैलरी 15 लाख पर मंथ। सोच पाएंगे आप? हाँ, प्राइवेट स्कूल सर, प्राइवेट है प्राइवेट स्कूल तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, कुछ हैं तो वो बहुत हाई हैं, लेकिन मैक्सिमम जो करते हैं उसमें पब्लिक और इसमें बहुत डिफरेंस है। गवर्नमेंट सैलरी तो अब हो गई ना, आज से 30 साल पहले गवर्नमेंट सैलरी कितनी? बहुत ही कम थी, प्राइवेट में ज़्यादा थी। धीरे धीरे अगर आप अमेरिका चले जाएं या दूसरे कंट्रीज को कंपेयर करें तो वहाँ तो प्राइवेट सेक्टर की जॉब में ज़्यादा सैलरी।
तो ये चीजें यही है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है, दो स्ट्रीम में चल रहा है। तैयारी लोग करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए यानी सेफ हो जाएंगे, काम नहीं होगा, काम नहीं होगा ना। तो वही चीजें हैं। नेक्स्ट वन पे आइए। Existing institutions are not responsive to the TWET needs. वो तो हमने पहले डिस्कस कर लिया, नहीं हम दे रहे हैं ना, क्या रिक्वायरमेंट्स दे रहे हैं, मार्केट की डिमांड क्या है, आज हमें प्रॉपर कंप्यूटर पर्सन्स चाहिए, बट आवर इंस्टीट्यूशंस आर नॉट गिविंग। नेक्स्ट, coordinated implementation of support program by different ministries and NGOs. सब डिफरेंट है, कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब रोड पे देखिए, रोड बनता है, जैसे ही रोड बना पता चला नाले वाले तोड़ देंगे, फिर केबल वाले आएंगे रोड तोड़ेंगे। ये है सबसे बड़ा एग्जांपल कोऑर्डिनेशन का नहीं। हम खुद तोड़ते हैं, मौका लगता है। तो हमें कहाँ कोऑर्डिनेशन बिल्ड, क्या हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन है सर? हाँ, वी हैव टू, बगैर कोऑर्डिनेशन के कोई भी काम सही, कोऑर्डिनेशन कैसे आए? बात करने से, मीट करने से, प्रॉपर एक रेगुलर इंटरवल पे मीटिंग होनी चाहिए, तभी हो सकता है कोऑर्डिनेशन। क्योंकि हमारे यहाँ 3 एक्सट्रीम्स है ना, मेजर अंदर अंदर तो बहुत सारी होंगी, तो उसका कोऑर्डिनेशन लाने के लिए वी हैव टू, यानी सबको कुछ करना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे सीबीएसई सेक्शन ऊपर है, एक सेक्शन सेकंड फ्लोर पे है, एक सेक्शन फर्स्ट फ्लोर पे है, तो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन कौन कर सकता है? सेकंड फ्लोर, है ना। तो ये होना चाहिए कोऑर्डिनेशन, क्योंकि चीजें पता चला कि कुछ और हो जाएंगी, कुछ और हो जाएंगी, तो इसीलिए कोऑर्डिनेशन सुपरवाइजर और टीचर्स में होना चाहिए। विदाउट कोऑर्डिनेशन काम क्या होगा? पॉश पॉश हो जाएगा, मैशअप होगा और सही रिजल्ट नहीं आएगा। CBTY क्यों जरूरी है? अभी हमने कहा ना कि 15 साल 20 साल पढ़ने के बाद भी बच्चा किसी लायक नहीं होता। तो और कंट्रीज में क्या एजुकेशनल सिस्टम है कि दोज हु आर नॉट कॉम्पिटेंट ऑफ दैट वन, देयर एक्सट्रीम्स आर चेंजेस। लेबर में जो जाना है वो पहले लेबर में चले जाएंगे, जो टेक्निकल कॉम्पिटेंसी है वो टेक्निकल फील्ड में कर दिए जाएंगे, जो एजुकेशन लेवल के फील्ड में जाने लायक दे विल बी डाइवर्टेड टू दैट। तो ये चीजें आती है, तभी जाके प्रॉपर होगी। और हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा स्कूल एजुकेशन में है कि यहाँ पे और कंट्रीज में जो है, जैसे प्राइमरी लेवल एजुकेशन है वो स्टेट मैटर, यहाँ पे दोनों सेक्टर काम करता है। गवर्नमेंट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर के आप स्कूल देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर के स्कूल देख लीजिए। एक तरफ अगर आप लोगों ने अभी कमियां बताई, एक तरफ अच्छाई भी प्राइवेट स्कूल की दिखाई देगी। क्या आप और हम अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल में भेजना चाहेंगे? हाँ, जबकि वहाँ के टीचर्स, हमने कहा ना कि बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, वाई जरूरी नहीं है कि ज़्यादा सैलरी पे ज़्यादा ही अच्छा काम है। तो हर चीज़ डिपेंड करती है, इंफ्रा भी ज़रूरी है, कॉम्पिटेंसी भी ज़रूरी है और एक प्रेशर भी ज़रूरी है। कोई भी एम्प्लॉय हो, सब लोग एम्प्लॉय हैं, अब प्रेशर शुड बी देयर। और ह्यूमन बीइंग से अगर प्रेशर हटा दिया जाएगा, इन्वायरमेंटल और सारा, तो बॉडी हमारी क्या होगी? ट्रस्ट हो जाएगी। अच्छा, ह्यूमन बॉडी में कितना प्रेशर रहता है किसी को मालूम? जो एक्सटर्नल प्रेशर, सर आप शर्मिस बोल रहे 10:5 कितना, क्या यूनिट के साथ बताइए? यूनिट के साथ, ठीक है। तो वो है, दबे हुए हैं हमें, नहीं तो हमारा अंदर का जो प्रेशर है ना वो फाड़ देगा हमारी इसकी पूरी बॉडी, रस्ट हो जाएगी। क्योंकि ब्लड जो चलता है, हार्ट हमारा पंप करता है, वो रुकेगा, हर चीज़ दब के चलती है। बगैर प्रेशर में कोई काम सही नहीं होगा। हम जब रात में सोते हैं प्रेशर बना के सोते हैं ना कि सुबह उठना है, यही तो है। एक होता है सेल्फ प्रेशर, इंटरनल प्रेशर होता है, एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है। तो दोनों, जब तक कोऑर्डिनेशन दोनों में नहीं होगा, द वर्क विल नॉट बी प्रॉपर। आज आरसीएमएस हिंदी चल रही है ना, ठीक है। आरसीएमएस ने एक चीज़ बहुत अच्छी कही कि सर सिर्फ 2 इंग्लिश में हुआ है, कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, तो थोड़ा सा, बाकी हिंदी तो सभी को समझ में आती है। तो दैट्स नेक्स्ट वन।
society, employer should be sure that graduates are professionally competent. अगर हमें मालूम है कि ग्रेजुएट होने के बाद उनको जो है कॉम्पिटेंसी के साथ साथ जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगी, तो हमारी कॉम्पिटेंसी बढ़ जाएगी, है ना। हम लोग तो अच्छा टीचर कैसे होता है आदमी, हम लोग कैसे टीचर हुए, कुछ नहीं मिला, अच्छा बीए कर लिया, कहीं एडमिशन नहीं हुआ, बीएड भी अप्लाई कर दिया, चलो बीएड कर लेते हैं फिर देखेंगे, अच्छा अभी भी कुछ नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट सेक्टर का, पढ़ाना शुरू करते हैं। और एक चीज़ बहुत अच्छी है कि जिसने भी 2 साल पढ़ा लिया दूसरा काम वो नहीं करता, डेफिनेटली कर पाएगा। ये इस जॉब का ये नशा है, नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह है क्योंकि भले आप लोग समझे कि मॉनेटरी फायदा नहीं है उतना, लेकिन एक फायदा है जो रिस्पेक्ट का जो मिलता है ना, वो बहुत बड़ा नशा है, कहीं नहीं मिलेगा। आपको इंटरेक्शन डेली 200-300 लोग जो विश करने वाले मिलते हैं विद अ स्माइल फेस, अब छुट्टी लंबी हो जाती है, हमारा दिमाग खराब हो जाता है, नहीं अच्छा लगता है। तो दैट इज द रिलेशन बिटवीन द स्टूडेंट्स एंड अस। और हम देखिए कितनी बड़ी चीज़ है कि एक बच्चे को छोटी सी तकलीफ होती है तो वी आर फीलिंग दैट पेन, तो ये रिलेशन कितना बड़ा रिलेशन है ना। बाकी रोड पे होता है वी आर नॉट फीलिंग, लेकिन हमारा बच्चा कहीं भी तकलीफ में दिखता है तो जितना बन पड़ता है वी आर डूइंग दैट। तो ये रिलेशन कहाँ से आया, खरीद के आया, पैसे नहीं दिया, नहीं, वो रिलेशन ऑटोमेटिक डेफिनेट बनता है काम करने पे, फिर दूसरा काम नहीं होगा जब तक हम लोगों को बच्चों का शोर ना सुनाई दे। लाइफ बहुत खराब है। कोविड में क्या हुआ था, सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड कौन टीचर हुई, वो यहाँ से बोल रहे हैं आवाज सुनाई नहीं दे रही है, वो खुद ही फ्रस्ट्रेट हो, वरना जब तक यहाँ ये ना आए नहीं है, क्योंकि हम लोग इसी में यूज हुए ना। अब कोई जो भीड़ में रहने वाला है, जैसे यहाँ के लोग गैबी नगर में रहते हैं, गैबी नगर को मुंबई में अगर भेज दिया जाए रहने वालों को, 5 नहीं रह पाएंगे, क्योंकि वी आर यूज टू दैट वन। हमको शोर चाहिए, हमको भीड़ चाहिए, हमको वो चाहिए, दैट इज यूज। और कभी कभी मजबूरी में वी आर, तो यही कॉम्पिटेंसी है कि हमें आज जरूरत पड़ी, वी हैव टू एडजस्ट टू दैट एनवायरनमेंट। अब प्लस हो गया ये मिस क्यों, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई तो नहीं होगा ना, क्योंकि सब कंस्टिट्यूएंट है, सोसाइटी है, एम्प्लॉयर है, वो है, उनकी सबको जो है एड करके साथ में चलेंगे, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, बैकवर्ड डिजाइनिंग, आउटकम ड्रिवन। सबसे पहले कुछ भी होता है ये चीजें जरूर आती हैं, बैक नॉलेज चेक की जाती है किसी की भी, देन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट बाय दैट। लेकिन हम लोग का जॉब ऐसा है कि हमें कुछ नहीं मिलना है, सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन मिलना है कि हम ये कह के खुश हो लेते हैं और अपने आप को प्राउड फील होते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा आज यहाँ पे बड़ी अच्छी जगह है। टीचर को यही मिलता है, अरे वो भी बहुत बड़ी चीज़ है। जो आपको 4 बच्चे, अभी तो आप लोग नए ज़्यादातर, जब सीनियर होंगे लगेगा ना, मिलेंगे कहेंगे अच्छा सर ने पढ़ाया था, मैं आज पीएम हूँ, मैं आज डॉक्टर हूँ, ये वो चीज़ें यू आर गोइंग टू गेट दैट। नेक्स्ट वन, स्टार्ट। व्हाट competence is needed to professionally perform a specified task। देखो एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि हमारी बाइक खराब है, तो हमको पहले ये मालूम होना चाहिए ना कि बाइक किसके यहाँ सही हो, दैट इज कॉल्ड द नॉलेज। तो हम उसके यहाँ लेके जाएंगे या दुकान पूछेंगे कि आप बाइक मेरी बना देंगे। We have to be competent of that one कि where this can be done, expectation should be there। तब वो चीज जाएगी उस पर्टिकुलर कॉम्पिटेंट पर्सन के पास, तब जाके वो रिजॉल्व होगी। नेक्स्ट वन, हाउ विल दैट बी असेस्ड, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। नेक्स्ट वन, हाउ इंस्ट्रक्शंस इज नीडेड टू प्रिपेयर लर्नर फॉर द असेसमेंट, वो भी डिपेंड करता है कि कैसा ग्रुप है, कैसा वो चीज है, दैट विल बी देयर। डिटरमाइन कंटेंट ऑफ यूनिट मॉड्यूल, ये तो बहुत जरूरी है, ये वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट। नेक्स्ट, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ, इसको हटा दीजिए, इसकी
ट्रेनिंग आप लोगों की चली रही है। अच्छा, ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? Improvement. Whatever the changes coming, that we will able to know that one. Yes, this one. उसी को लाइए हमें से। देखिए क्या कहते हैं, ट्रेनिंग अप्रोचेस यूज लर्नर सेंटर्ड, एक्टिविटी बेस्ड, फ्लेक्सिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस। फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है ना स्कूल। टाइम, प्लेस, कंटेंट क्या हम चाहेंगे अभी बाहर बैठ के पढ़ाना, तो दैट इज अलाउड फॉर अस नहीं है, चाहे लाइट नहीं हो, बट वी हैव टू यूज दैट, और ये हो भी नहीं सकता है पॉसिबल, तो वी हैव टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू दिस वन। तो इसके लिए अगर ये सारी चीजें रहेंगी, देन यू विल हैव दी थिंग्स विल बी प्रॉपर्ली डन। ब्लेंडेड फेस टू फेस, डिस्टेंस ऑनलाइन, ये तो चल ही रहा है, वी आर यूज्ड टू दैट। वैरायटी इन मेथड्स, क्या है वैरायटी मेथड्स में? हम लोग वही अपना रहे हैं, वही बेसिक क्या हम यूज करते हैं, ये सब ड्रॉबैक्स हैं। ऑडियो वीडियो तो चल ही रही है, लेकिन हाउ वी आर यूजिंग दैट। ऑडियो वीडियो चला के अपना काम खत्म हो जाता है। अगर बच्चों को वीडियो दिखाना होता है तो उसको अगर आप एक्सप्लेन करें तो दैट विल बी मोर फ्रूटफुल फॉर यू। इसको किसकी Now it's a question from you. Should it be implemented? Can it be implemented? What problems do? अच्छा, ये can or should में क्या? What is the difference between this? Yes, possibility. तो क्या आंसर होगा दोनों में से आपका? Should be implemented from our part. Think about the our part. That if this will be implemented in our school, that will be good for us or not? We will able to do that one or not? Yes. Yes. That should be the thing. Yes, we will able to do that one. At present we doesn't have the knowledge of that one, but if we try, we will able to do that one. क्योंकि कोविड ने एक नई चीज सिखाई है जो एकदम न्यू थी. We are not aware about the online classes, how to make the videos and how the students will be engaged. First, I think this school has engaged that. ऑनलाइन क्लासेस में भिवंडी में सबसे ज्यादा इसी स्कूल ने काम किया. So if there is a will, there is a what problems तो हर काम में रहे, है ना? Everywhere we have the problem. Either we have a lot of money, then again a problem will be there. If we have shortage of money, there will be a problem. Everywhere, but the extent of the problem and the type of the problem will be different. That's why ना कि सातों दिन के नाम अलग अलग इसीलिए रखे गए, लेकिन फिर घूम के वही आता है ना घूम के. So that's the thing. यही हमारे पास है नई चीज तो हो सकती है. CBT the way to go. Will it crush you? हाँ, क्रश कर देगी CBT. हाँ, क्यों नहीं है? ये तो कहिए कि स्कूल के टाइम में अगर बाद में वर्कशॉप होता तो क्रश तो कर ही देती. Yes. So flexible हमें होना चाहिए. We are talking about the flexibility. लेकिन मुनीरा में टीचर्स को ये कंप्लेन है कि आप लोग तो काम रहता है फ्लेक्सिबल, हम लोग को रोक लेते हैं, लेकिन हम लोग को फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलती आने और जाने में. नहीं है ना? 5 मिनट फ्लेक्सिबिलिटी इज ऑलवेज देयर ना. क्योंकि आपको फ्लेक्सिबल अगर किया जाएगा तो द वर्क विल नॉट बी प्रॉपर. क्योंकि हर चीज सेटअप है. एक माइंड इस टाइम इस क्लास है, इस बच्चे का है. अगर आप अपना फ्लेक्सिबल करेंगे तो एक क्लास नहीं कई क्लास है, और अल्टीमेटली उसका रिप्लेसमेंट आप ही को देना पड़ेगा. कभी प्रॉब्लम आती है ना कि मेरी तो रोज ड्यूटी लग जाती है, प्रॉक्सी लग जाती है. तो दैट समरी बची है तो डिटेल में हम लोगों ने इतना सब डिस्कस कर लिया. आई थिंक नो समरी इज लेफ्ट फॉर दैट. अच्छा, ये एक मिनट देखो, व्हाट डज इट शोस? नहीं वो छोड़िए, व्हाट वर्क दे आर सीरियसली
taking the notes for that one or for the plan they are involved that. क्यों ये फोटो लगाया है जिसने भी, क्या सोच के लगाया? वो तो दिख रहा है कि यूनिफॉर्मिटी एक गुड हम लोग यूज टू है कि सारे बच्चे यूनिफॉर्म में है कि नहीं, वो वाला नहीं है, दैट वी आर गोइंग टू है ना. उनका कंसंट्रेशन देखिए, ऑल आर कंसंट्रेटिंग टू देयर टास्क, आर इन्वॉल्व विद दैट वन, दे आर टेकिंग नोट्स और दे आर प्रिपेयरिंग नोट्स फॉर दैट. नेक्स्ट वन, illustrate competency with examples. तो जितने एग्जाम्पल आए मेरे ख्याल से किसी वर्कशॉप में नहीं आए थे मेरे दोनों के बाद. आज तो एग्जाम्पल ही के बात की है मैक्सिमम. Distinguish between the competence and the competency. Everybody is clear about this word. Discuss the basic principles of CBT. और मेरे ख्याल से I am not going to the theoretical principles. But we have that, we have to make number that principle that. So thank you. Yeah. I have a question. Coordination के लिए इस क्या कर सकते हैं? Which type of coordination? For that one, you have to talk to the concerned person. You have to move. You don't have to be stationary. If any work is given to you, that will be done automatically. If that you are not getting that work at the proper time, you have to follow up with that one. Then the coordination can be built up. If the two persons are not ready to talk each other, how the coordination? The personal thing should be done. If like that one, I am just citing your example. If you are coming late, you have to message it at proper time. That will be coordinated easily. But when your message will be coming late one, the coordination is not there. Okay. हम कुछ टीचर्स नीचे की कोऑर्डिनेशन के लिए बैठे थे, तो हायर अथॉरिटीज का फोन आया कि आप लोग क्यों बैठे? So कैसा coordination? डिस्कस करने की. That is discussion is not part of coordination. और सेकंड चीज कोऑर्डिनेशन सर कन्वर्सेशन से होगा. अगर वी आर सिटिंग टुगेदर फॉर कन्वर्सेशन और But either that you